Hello and Namaskar. Welcome to OPSC Achievers Academy. This is your lecture number 3 of Ancient India. In lecture number 2, we have completed up to early Vedic period, and in lecture number 3, we will study from later Vedic period up to Nanda dynasty. Before we begin the course, just a quick information. This is our prelims precision program, where we will give you 240 lectures of GS1 including current affairs. Our only aim is that you qualify the prelims first, because without qualifying the prelims, whatever the knowledge you have gathered for mains, for interview, everything will be in vain. So our aim is to make sure you qualify the prelims in this attempt, and once we will clear the prelims, we will again start for the mains. In PPP program, we are running Indian polity along with Indian history simultaneously, because by June 7 we need to complete the syllabus, we need to revise it, we need to give the mock test, everything we need to do within that time period. Here we will focus on the themes that OPSC loves to ask question from. We have designed the entire PPP course along with the test series in a scientific way, so that it is beneficial for the students who are appearing for OCS 2025. Along with this PPP program, we are providing free mock test, which is costing you around 2,499 rupees. So, without wasting so much of your time, let's start today's topic, that is later Vedic period. During later Vedic period, iron was discovered. Just give me 1 minute. During later Vedic period, iron was discovered around 1000 BC. The place where it is discovered is Atranj Kheda and Kheda in UP. जेतबेले आयरन आसिबो कोन हो, when the discovery of iron was happen, they create sharp tools, माने बहुत धारुआ वाला tools they can create, which they used to clear the forest that is present in the Gangetic plain. जोटी forest थिला से forest को clear करिकी, ओके, forest को clear करिकी से माने सेठी चाष करिया स्टार्ट कले, because we know that the Gangetic plain is very fertile, and that fertile land is very precious. Aryans further penetrated into eastern parts of the country and the central India. आर्यन माने कौन कौन कहूले आमर अलग अलग इंडिया पार्ट्स को, द नॉर्थ वेस्ट पार्ट दे कॉल्ड इट आज ब्रह्मव्रत. नॉर्दर्न पार्ट को कौन कहते से माने दे कॉल्ड इज आर्यव्रत. ईस्टर्न पार्ट को कहते से माने पूर्वखंड, और सेंट्रल जो पार्ट रहा दैट इज दे कॉल्ड आज मध्यव्रत, सॉरी मध्य देश. सेंट्रल पार्ट को से माने कहते मध्य देश.
In later Vedic texts, there is mention of rivers like Gange or Ganga, Yamuna. ଆଉ ଗୋଟେ ବି river mention ହେଇଛି which is known as your Gandak. Let's discuss what are the political structure during later Vedic period. At this time, the Rajan or king became all powerful. The political assembly of Vidhat, it was completely disappeared. माने विधात हवा बंद हो गला. आम जमी देखते कि सभा समिति आर रिलेवेंस धीरे धीरे कमी गला. वोमेन वेयर evicted from assembly or sabha. In early Vedic period, we have seen कि वोमेन मानू सभा समिति अटेंड करने दिया जाउथला. But during this latter Vedic period, they were denied in the Sabha and Samiti. The priestly class assumed very important role of aiding and advising the Rajan. जो Rajan रहिले, the king, तांको priest class was aiding in administration and also advising them. To confer supreme power, the Rajan priestly class devised rituals. केतरा से rituals आउ sacrifice arrange करते so that the supremacy of king can be maintained. कौन कौन थिला? Number 1 is राजसूया. राजसूया बुझिया चेष्टा करो कौन राजसूया माने. It is basically consecration ceremony. Consecration माने होला आमे जा कहते राजा अभिषेक और राज अभिषेक. राज अभिषेक माने जेतले राजा जेमती एबे हमरो पीएम और सीएम ओथ टेकिंग सेरेमनी होची, दैट टाइम कंसेक्रेशन सेरेमनी होतला ताको आतला राजसूया. इन दिस सेरेमनी एक्सेशन ऑफ राजन टू द थ्रोन माने जो गद्दी थिला राजा गद्दी से एक्सेशन होतला विथ द ब्लेसिंग्स ऑफ प्रिस्टली क्लास. सेकंड इज बाजपेय. बाज और बाजपेय. व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ चैरियट रेस. चैरियट रेस माने गोटे इवेंट थिला, स्पोर्ट्स इवेंट जो से माने कौन करते चैरियट माने रथ रो दौड़ी प्रतियोगिता होता. आफ्टर द एंड ऑफ द इवेंट ए ग्रैंड फीस्ट इज थ्रोन टू पब्लिक. जो मैंने आसले टू बी द ऑडियंस ऑफ द प्रोग्राम से गोटे फीस्ट आयोजन कराला. एंड नंबर 3 इज अश्वमेधा. अश्वमेधा अश्व माने घोड़ा. अश्वमेधा एथरे कौन करा हबो? राजा तांकर टेरिटोरी एक्सपांशन करिया पई गोटे घोड़ा को आनिबे, गोटे ब्रूइस्ड हॉर्स को से छाड़ी देबे. से घोड़ाटा अन्य राज्य को जाइए दौड़. जदि सेठिकार राजा सेठिकार जो किंग थे जदि से हॉर्स को धरले देन देयर विल बी ए वार. जी से वार जीतब से टेरिटोरी पाइब. जदि से राजा से माने से किंग से माने हॉर्स को न धरिक छाड़ीदेवे देन इट इज कनसिडर्ड दैट कि सेठिकार राजा ओके सेठिकार राजा कौन लिखाई वार्ड देखो. द रूलर डज नॉट कैप्चर द हॉर्स देन इट मीन्स ही एक्सेप्टेड सुप्रीमेसी ऑफ अश्वमेधा किंग. जो राजा अश्वमेधा यज्ञ करिकी से घोड़ा को छाड़ी थे मानि निया कि जो राज्य को जाइथिला से राजा सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करदेले कि सेठी भी एबे जी अश्वमेधा यज्ञ करथिले तांकर राज चलिबो. ऑन द लास्ट डे ऑफ सेरेमनी जेतले सेरेमनी सरिबो से हॉर्स ताको सैक्रिफाइस कराबो. सैक्रिफाइड अलोंग विथ 21 स्टेराइल काउस एंड मोर देन 200 बुल्स. सेतले भी माने एबे तो बहुत कमी गलानी. स्टिल इट इज हैपनिंग इन सम प्लेसेस
केते जगह बहुत कम होची बट स्टिल हवा कथा नुहे like the sacrifice of animals. That time also it is being done. Then comes to the economic condition during that later Vedic period. लोक मैंने कौन करते इकोनॉमी केमिति चलता है As I told you, land become the most important economic wealth of that time. जहाँ पाखर जिते जमी थिला से सेते wealthy. Battles are mainly fought for the tract of land. Land को नहीं की युद्ध होता ता आगुरु कौन थिला ता आगुरु फॉर काउ से तले गाई को मना होता कि दे आर द वेल्थ जहाँ पर जिते गाई थिला अर्ली वैदिक पीरियड रे ताको हम सेते वेल्थी कहते जो लैटर वैदिक पीरियड आसला द ट्रैक्ट ऑफ लैंड बिकम द वेल्थ ऑफ द पीपल कारण एबे कौन है एबे लोक मैंने चाष कर शिखी जाते दे हैव डिस्कवर्ड द यूज ऑफ आयरन डिस्कवर कलापर से जंगल को सफा करके चाष करें सो वेल्थ or the land become the precious wealth. And the importance of land is highlighted in the later Vedic text with the term rashtra. Land को कौन कहला राष्ट्र कहला राष्ट्र मान आमे कौन बुझछंती देश right. There was no formal system of taxation. लोक मान ऊपर टैक्सेशन किसी फॉर्मल सिस्टम नथिला वॉलंटरली दे कंट्रीब्यूट से माने जे चाष कले तादरु तांको इच्छा अनुसार से राजा को दूसरे एंड दैट टैक्स इज नोन एज भाग और बलि कौन कहला दैट इज नोन एज भाग और बलि व्हाट इज द सोसाइटल स्ट्रक्चर एट दैट टाइम वोमेन डिड नॉट एंजॉय एनी पॉलिटिकल राइट वोमेन मान को ऑलरेडी सभा समिति पॉलिटिकल राइट रू एक्सक्लूड कर दिया जाता दे वर नो मोर मेंबर ऑफ द सभा और विधात एजुकेशनल डिस्कोर्स वाज स्टिल ओपन टू वोमेन से पाठ पढ़ाई अनुमति थिला दे आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन इंटेलेक्चुअल डिबेट डिस्कशन ये सब जिन से करें देयर वाज ए कॉन्सेप्ट ऑफ गंधर्व विवाह इट वाज नॉट एनकरेज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गंधर्व विवाह माने काइंड ऑफ स्वयंवर एंड देयर आर टू important concept of marriage that we need to understand. What is that? Anulam and Pratilam. Anulam कौन होता higher caste men married to lower caste women and it is not encouraged but it is allowed. Higher caste पुओ यदि lower caste झील को बाहा हो that is known as Anulam. What is Pratilam? Higher caste women married to lower caste men. जहाँ भी कास्टिस्ट सिस्टम अच्छी से जो क्लास सिस्टम अच्छी जदि हायर कास्ट वोमेन मैरिड टू ए लोअर कास्ट मेन दैट इज बैंड इट इज नॉट अलाउड ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो द नोन ऑफ द मैरेज वर एनकरेज्ड क्या भी एनकरेज करा बट अनुलोम वाज अकोमोडेटेड माने अनुलोम मैरेज कले एते रेस्ट्रिक्शन नथिला जति के प्रतिलोम रे रेस्ट्रिक्शन थिला देयर वाज नो इंस्टेंस ऑफ चाइल्ड मैरेज एटा गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट से चाइल्ड मैरेज रो किसी इंस्टेंस नथिला ओपीएससी जब क्वेश्चन पचारिबो दे माइट आस्क कि लेटर वैदिक पीरियड रो फीचर देथिबो से गोटे पचारथिबो कि एट दैट टाइम चाइल्ड मैरेज वाज प्रिविलेंट इन द सोसाइटी तो सेट तुमको मन पकई लिखार अच्छे माने यू नीड टू आंसर कि नो चाइल्ड मैरेज आर नॉट मेंशन्ड एट दैट टाइम विडो मैरेज was continued under नियोग विवाह इज इट वे इन व्हिच विडो रिमैरेज होता नियोग विवाह रे कौन करा जाए माने लेट सपोज वोमेन मैरिड टू ए मैन जो से मैन रो डेथ हो तार जे यंगर ब्रदर थी ताकू से वोमेन बाहाई पार इन द 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद अंडर पुरुष Sukti, it was mentioned to divide the society into 4 varnas. Later Vedic stage रे ये जो वर्ण सिस्टम और डिवाइडिंग द सोसाइटी इंटू 4 वर्नस वाज स्टार्टेड आगुरी थिला बट लेटर वैदिक पीरियड रे एटा रीइनफोर्स करागला आउरी शक्तिर सहित पालन करागला बिकॉज लोक मान बारे खाया पी आसीगला चाष करदेले से शिखीगले तो टाइम टा केमती दिस इज ए क्लासिकल केस ऑफ politics
पॉलिटिक्स जमी इंग्रेज मैंने भी करते डिवाइड एंड रूल क्लास क्लास भर लड़ाई कर दियो से मैंने से लड़ुवे तुम रूल कर ना कम्युनिटी कम्युनिटी भर लड़ाई कर दियो भाई भाई भर लड़ाई कर दियो फैमिली फैमिली भर लड़ाई कर दियो सिटी सिटी भर लड़ाई कर दियो रिजनलिज्म नहीं आस कम्युनालिज्म नहीं आस एमती कले कौन हम लोक मैंने प्रोब्लेम से मैंने फसीजे एंड देयर विल बी नो वन टू आस्क द क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट तो से भी समान सिस्टम से फॉलो करते दे डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार्टा वर्ण सिस्टम ये स्टार्ट है एंड इट वाज यू नो ये भारत दशा से कौन करते अकॉर्डिंग टू दिस वर्ण सिस्टम दे बिलीव द ब्राह्मण फैमिली मैंने दे इमर्ज फ्रॉम द माउथ ऑफ आदि ब्रह्म को माउथ से बाहर क्षत्रिय वाज फ्रॉम द सोल्जर और चेस्ट वैश्य वाज फ्रॉम द थाई एंड शूद्र फ्रॉम द फीट and another concept was emerged that is gotra which means the lineage from common ancestor. Brahmin advise exogamy of gotra endogamy माने निज गोत्र रे जो माने बाहा हेबे that is endogamy of gotra exogamy माने निज गोत्र छाड़ी के आगोटे गोत्र रे बाहा हेबो केमते होतला देखो आगरु जो गोत्र सिस्टम थिला that was named after ऋषि विशिष्ट हो गले ओके माने जिते सब ऋषि थे तो ना गोत्र होता गोत्र माने से गोटे फैमिली स्टार्ट है लिनिएज तापर भी जिते सब आंसेस्टर आसवे माने जिते सब नेक्स्ट जेनेरेशन आसे समस्त गोटे गोत्र दिया एंड दे बिलीव इट इज ऑल्सो साइंटिफिकली प्रूव्ड जदि सेम गोत्र जदि माने मदर साइड रू 2 or 3 जनरेशन और फादर साइड रू भी सेमती 2 or 3 जनरेशन भीतर जदि मैरिज होची then there is a probability that there will be mutation of the DNA mutation है कि जो child जन्म होगा there may be some defect but that is not कि 10टा generation 15टा generation इतने generation हो 2-3 generation पर्यंत that is there and they might know that thing or they have not mentioned this से माने कहते कि exogamy of गोत्र is necessary in matter of matrimonial alliance. Brahmins also consolidated the concept of 16 संस्कार कौन था तांकर लाइक उपनयन संस्कार जो सैक्रेड थ्रेड सेरेमनी कहते जोटा माइट भी ओडिशा व्रत घर कहते बोधे देन विवाह इज अनदर संस्कार अंत्येष्टि लास्ट राइट आम जोटा कहते लोकर डेथ होगा पर देन अन्नप्राशन जिते पिला को आम कि वर्ल्डली फुड जो आम फास्ट टाइम में खोचती प्रथम तो से मदर ब्रेस्ट फीडिंग से रो 6 months 7 months पर वर्ल्डली फुड जो आम मैंने आम जो खाऊँ जो दबा फॉर दैट देयर इज अनदर सेलिब्रेशन आम कहीपर ए तो दे आर सेलिब्रेटिंग इट लाइक अन्नप्राशन कहीकि देन नामकरण जो कि आमर जमी अच्छी ओडिया घरे जो गोटे पिला जन्म हो 21st डे 21 जोटा आम कहते से दिन आम पिलार ना दौरान देन देयर इज फास्ट 4टा स्टेज थिला जोटा आम आश्रम बोली कहते तो लाइफ को 4टा स्टेज डिवाइड करते फर्स्ट स्टेज इज ब्रह्मचर्य व्हिच इज सेलिबेसी पीरियड एंड स्टडी पीरियड से पिला पाठ पढ़ो सेलिबेसी रो सेकेंड इज गृहस्थ दैट इज मैरिड लाइफ एंड इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी बाहर नेक्स्ट जनरेशन को आने घर संसार जहाँ दायित्व अच्छी दे विल टेक केयर ऑफ दैट देन वानप्रस्थ पार्सल रिटायरमेंट फ्रॉम हाउस होल्ड तांकर जो नेक्स्ट जनरेशन आसले शिखेबे केमती जनरेशन आगू बढ़ार अच्छी आ धीरे धीरे करके रिटायरमेंट नवा स्टार्ट करेंगे पार्सल रिटायरमेंट हो एंड दे विल फोकस टू अटेन विजडम एंड द लास्ट स्टेज इज सन्यास इन व्हिच कंप्लीट रिटायरमेंट फ्रॉम द हाउस होल्ड दिस इज द 4 stages of ashram life. Then what are the religious practices of that time? Early Vedic gods like Indra, Agni, Varun, etc. lost their former importance. And at this time, the Prajapati or Brahma, the creator of the universe, emerged as the most
important god. Moreover, Rudra, Vishnu also emerged as important god. The mode of worship at this point of time was through prayers. ସେମାନେ ପ୍ରେୟାର କରୁଥିଲେ, recitation of mantra को जप करिबा, performance of yajna and offering sacrifices. The objective of worship was to seek material gain. ସେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ, offering, ପୂଜା, ପାଠ, everything was done to seek material gain, wealth and prosperity, but it was not for spiritualism. ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ spiritualism ପାଇଁ ପୂଜା ହେଉନଥିଲା. In latter half of latter Vedic period, the progressive section of society started reform movements. Hereby they emphasized on spiritualism. Right? Spiritualism latter Vedic page ro last stage ପାଖାପାଖି ଆସିଲା. Then coming to the next chapter, that is rise of 16 Mahajanapada. Around 6th century BC, 16 Mahajanapada emerged in India. Mahajanapada माने कौन? Large और big territorial states. छोटे छोटे स्टेट को जब हमें मिसे देवा बड़ा बड़ा स्टेट हो, that is Mahajanapada. Janapada means छोटे छोटे states. That is there may be a rajan जे ताकू administrate करते हुए, and also there is a proper or established system of administration along a standing army. तांक पारे गोटे बहुत बड़ा आर्मी रहउतला to defend their territory. जतिक एरिया से माने शासन करथले से एरिया को माने प्रोटेक्ट करिया पे they have standing army. The initial Mahajanapada history can be traced from Buddhist and Jain books like Anguttara Nikaya, Bhagavati Sutra. Okay, this is not so important, so we will focus on the theory and the concept which is necessary for clearing the prelims. First of all, the Magadha was raised as the most powerful Mahajanapada at that time. Before Magadha, Kasi and Kosala were there. They are most powerful. But over a period of time, Magadha emerged as the most powerful Mahajanapada. ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ମଗଧ most powerful जनपद ହେଲା, then there must be some advantages or there may be some strategic importance or strategic advantage जोटी पे मगध एते बड़ पावरफुल महाजनपद हो पाला. द फर्स्ट इज मगध कैपिटल राजगृह वाज स्ट्राटेजिकली लोकेटेड. माने एमिति जगह से थिला, इट इज सराउंडेड बाय 5 माउंटेन्स. तो यदि 5 माउंटेन चारिपटे रहिले, दैट इज एक्टिंग एज ए नेचुरल बाउंड्री. तो ताकू अटैक करिवा इज नॉट एन इजी टास्क. सेकंड कोन, द मगध वाज अबंडेंट रिवर चैनल्स जोटा तांकू ट्रेड आ कॉमर्स करिया हेल्प करतला. सेकंड पॉइंट. थर्ड इज मगध वाज डेंसली फॉरेस्टेड which provided good quality of timber. सेतले timber जो काठ, that is most precious thing. काठरे बहुत सारे जिनस चैरियट तैयारी होतला, प्लो तैयारी करा होतला, इक्विपमेंट्स घर में तैयारी करा होतला. सो timber was one of the important material. तांका पारे timber भी sufficient थिला. मगध had huge reservoir of iron. तांका पारे iron भी reservoir थिला. सो से मैंने आयरन को नहीं कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट कर पारते एंड दे प्रोवाइड दिस टू देयर आर्मी. मगध रूलर्स वर अनऑर्थोडॉक्स. से अनऑर्थोडॉक्स थे. दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड. यदि ऑर्थोडॉक्स होते से मैंने एत बड़ जनपद तैयारी भी कर पार न था. देन कमिंग the first dynasty that we need to understand is Haryanka dynasty. केबे स्टार्ट होइतला 554 BC रो 412 BC. बिंबिसार was the founder of Haryanka dynasty. एतिक मन रखियो, बिंबिसार थिले फर्स्ट. सेकंड के आसले तमरो अजातशत्रु. बिंबिसार कोन करथिले टू मेंटेन और टू इंक्रीज his power. He followed the policy of matrimonial alliance.
अलग अलग देशर रानी को अलग अलग देशर प्रिंस को सी बाहर पावर को इनक्रीज करते लाइक महाकौशल देवी ऑफ काशी से मैरिज करते चेलना ऑफ लिचावी इज वन ऑफ द महाजनपद जोटा कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल चलता एंड खेमा ऑफ माद्रा सहित से मैट्रिमोनियल अलायंस करके पावर को कंसोलिडेट करते फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ मिलिटरी एनेक्सेशन ही अनेक्स्ड महाजनपद ऑफ अंग एंड प्लेस्ड इट अंडर हिज सन अजातशत्रु ही सेंट हिज फेमस फिजिशियन जीबक टू अवंती जो किंग थिले जंग ना लिखाई चंडा प्रदोतया तांकर जंडिस होता तो तांको ट्रीट करने जीवक जे तांकर फिजिशियन थे ताकू पठे अवंती को दिस इज द मैप वेयर यू कैन सी द रीजन्स दिस इज द अंग दिस इज काशी दिस इज बस्य सब महाजनपद दिस इज कोशल मल्ल मगध बाजी कुरु गांधार कंबोज आसामक अवंती देखो ये एरिया सबकि कनसेंट्रेट होगी होल नॉर्थ आउ ईस्ट एरिया रे ये सब जिन कनसोलिडेट होगी बिंबिसार वाज कंटेम्पररी टू बुद्ध टाइम दी जन थे बिंबिसार भी थे पुओ अजातशत्रु भी थे अजातशत्रु के आसले 492 BC रू आसले 460 BC पर्यंत एंड ही टेक द पावर assassinating his father Bimbisara. After his authority, it was challenged by the kingdom of Kashi and Lichavi. से काशी लिचावी सहित फाइट भी कले वार भी लड़िले इन कोर्स ऑफ वार देयर वाज एग्रीमेंट बिटवीन काशी रूलर प्रसन्नजित एंड अजातशत्रु बट लिचावी सहित तांकर किछि एग्रीमेंट हो पारानी एंड ही डिस्ट्रॉयड जो अजातशत्रु थे दे डिस्ट्रॉयड लिचावी यूजिंग हिज टू इनोवेटिव वार इंजिन्स कौन थी गोटे रथ मुसल ए रिवॉल्विंग मेस वाज अटैच्ड टू ए चैरियट तुम देखी यदि से मूवी दैट इज जो मूवीटा थी आमर माहिष्मती बाहुबली टू रे गोटे रथ थी ना आगे चक्री गोटे घूर लोक काटी काटी जाऊ दैट इज रथ मुसल एंड महाशील कंटक इट वाज फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म टू कैटलपुल्ट स्टोन्स को रखिकी दूर पर्यंत पकड़ापी पथरे टाणिबे यहाँ भी बाहुबली 2 रे देखाई पथर गुड़ा रखिए ताकू पछक टाणिकी मैंने जमी बाटुले आम छाड़ुं पछक आणिकी आगू छाड़ुं सेमती पथर को रखिकी फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म ताकू माने जो एनिमी साइड थे ऊपर पकड़ अच्छे अजातशत्रु also contemporary to Buddha and has great respect for Buddha. ये important जिनस अच्छी मार्क करो. In 483 BC, after the death of Buddha, Ajatashatru convened first Buddhist council at Rajagriha in 483 BC. से माने OPSC can ask question like कि चार्टा जो बुद्धिस्ट सेशन होता मे भी पचारि पार कौ किंग करते मे भी पचारि पार कौ जगार होता मे भी पचारि पार कौ ईयर होता मोस्टली से पचारे द नेम ऑफ द प्लेस एंड द प्लेस नेम इज राजागृह राइट मन रखिए सब जिन देन उद्यान अजातशत्रु पर के आसले उद्यान ही वाज नॉट दैट पावरफुल तो तांको मिनिस्टर जे थे शिशुनाग से मारे मारिकी शिशुनाग डायनेस्टी स्टार्ट कले केबे स्टार्ट है 412 BC रु 344 BC पर्यंत चलला शिशुनाग कंप्लीटली अनेक्स द महाजनपद ऑफ अवंती को से कंप्लीटली अनेक्स करदे निज टेरिटोरी मिसेदेले एंड ऑल्सो डिसाइडेड द शिफ्ट कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्र टू वैशाली देखो टिके ये गोटे पॉइंट तो मार्क करिवो अजातशत्रु बिफोर हिज डेथ डिसाइडेड टू शिफ्ट कैपिटल मगध को राजगृह को से नहीं आसते जोटी कि फास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होता सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होता वैशाली रे फाइन तो वैशाली को शिशुनागा डायनेस्टी रूलर फास्ट रूलर जी सी
कैपिटल को पाटलिपुत्र वैशाली को नहीं आसले ओके पाटलिपुत्र वैशाली को नहीं आसले फास्ट था राजगृह जो फास्ट कौन होता फास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होता तापर पाटलिपुत्र को गले पाटलिपुत्र चेंज होकर आसला वैशाली को वैशाली सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होता मन रख आफ्टर हिज डेथ कालाशोक बिकम द नेक्स्ट एम्परर कालाशोक एंड अशोक इज डिफरेंट मन रख से चक्रवर्ती माने से मौर्यन डायनेस्टी थे ये शिशुनागा डायनेस्टी कालाशोक ये पीरियड रे कौन होता कालाशोक ऑर्गेनाइज सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल इन 383 BC एट वैशाली फास्ट राजगृह रे सेकेंड है वैशाली रे फाइन मन रख इन व्हिच इनफॉर्मल डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म हैपेंड जो आम बुद्धिस्ट अलग अलग फॉर्म आसला इनफॉर्मल होता जो आम काश्मीर पढ़ा कनिष्क डायनेस्टी सेठी फाइनली बुद्धिस्ट अलग अलग फॉर्म आसबे नेक्स्ट आम कालाशोक तांको किए मारथिले महापद्मनंद महापद्मनंद वाज एस्टाब्लिश्ड नंद डायनेस्टी इन मगध ही वाज फर्स्ट नॉन क्षेत्रीय डायनेस्टी ऑफ मगध आगुरी जिते सब अजातशत्रु बिंबिसार समस्ते क्षेत्रीय थे बट नंद डायनेस्टी रूलर महापद्मनंद वाज नॉट फ्रॉम द क्षेत्रीय डायनेस्टी केबे से माने फाउंड करथिले द डायनेस्टी वाज फाउंडेड इन द ईयर 344 BC से पावर को आसले से सब क्षेत्रीय मानू माने रास्तार हटाइक चाहते एलिमिनेट ऑल द क्षेत्रीय फ्रॉम द मगध बिकज से चाहते कि तांकर शासनटा सबुदिन पे चालू ड्यू टू दिस एक्सक्यूज मी अग्रेसिव एटीट्यूड ही कम टू नोन एज एकरात और उग्रसेन से कौन कहला उग्रसेन और एकरात जस्ट 1 minute he annexed Kalinga during his tenure in a quick succession after the death of Mahapadmananda many rulers were appointed the last ruler of Nanda dynasty was Dhanananda at this time ruler of Macedonia Alexander जो थिले Macedonia रो he started his eastern campaign तांको गोटे स्टोरी अच्छी कि नॉट ए स्टोरी द थ्योरी इज दैट कि अलेक्जेंडर को किए कही कि जो एशिया अच्छी भारत पर आउ कि ना से वर्ल्ड खत्म हो केवल पानी अच्छी एंड अलेक्जेंडर वाज ए ग्रेट माने नेचरिस्ट फ्लावर भल लगे फूल भल लगे ओके नेचर भल लगे तो से फाउंडेड करने एपट को आसते ईस्ट को आसते ऑब्वियसली आसला बेले से आनेक्स कर चलते साम्राज्य को बढ़ाई से चाहूले सो जिते से ईस्टर्न कैंपेन करते ही फाउट ए वार विथ इंडियन रूलर पोरुस द बैटल इज नोन एज बैटल ऑफ हाइडास्पास झेलम नदी कूल बैटल ऑफ हाइडास्पास ये पोरुस हारी जाते बट अलेक्जेंडर वाज इम्प्रेस्ड बाय पोरुस से तापरे तांको रीइंस्टेट करथिले एंड मेड हिम हिज अलाय नॉर्मली हारला पर से आनेक्स करिया कथा बट पोरुस एते माने वीरत्व देखे कि लड़िले अलेक्जेंडर वाज इम्प्रेस्ड बाय हिम तो तांको से राज्यर रीइंस्टेट करा गला आ तांको तांगर अलाय बनैले बट अलेक्जेंडर व्हेन ही वाज रिटर्निंग से आउरी आगु आसे चाहूले बट तांकर सोल्जर माने बहुत थकी जाइथिले से रिटर्न कले टू मेसिडोनिया एंड व्हेन द अलेक्जेंडर वाज रिटर्निंग ही वाज अटैक्ड ट्रेचरियसली ओके ट्रेचर करी अटैक कराला विश्वासघात करी अटैक कराला एंड बिकॉज ऑफ द इंजुरी ही डाइड फाइन सो टुडे वी विल स्टॉप द लेक्चर हियर एंड फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट मौर्यन डायनेस्टी ठीक है हमको अधिक पढ़ाई पड़ो बिकॉज वी हैव लेस टाइम सो from next class onwards we will take almost 90 minutes or 120 minutes per lecture. So if you found this lecture is helpful, it can improve your knowledge. If you found it can help you to clear the prelims exam, you can join our PPP program. Last 2 seats is left at 4999.
ଆଉ ଦୁଇଟା ସିଟ୍ ପରେ obviously we will increase our cost to 5,999. If you want to join the course, please contact us on this number 7989778247. Thanks for watching the lecture. Have a great day.